Dear learners, you all are welcome to secondary level mathematics program of NIOS. Dear learners, you know that in our day-to-day life, we use mathematics for solving different problems that arise in our surrounding, and we take different equation. Particularly, we talk about linear equation that helps to solve different problems that arise in our surrounding. Now, we will discuss about one of the very important concept, that is linear equation in mathematics. Dear friends, when talking about linear equation, you see there are two words consist. One is linear and another is equation. That means when talking about linear equation, there are two distinct words. दो वर्ड में combination है. One is linear, another is equation. First, we have to understand what exactly the meaning of equation. When talking about the equation, we know that what is algebraic expression. When talking about algebraic expression, you know that there are three things. One is variable, constant and algebraic operation. When we combine three things, then it become a algebraic expression. For example, जैसे मैं बात करूं 2x plus 3, you see I have written 2x plus 3, which is an example of an expression. Why it is expression? You see there are three things are there. One is when talking about algebraic expression, you see 2x is the one variable, this is the variable and this is the constant, and plus, you know, plus is the algebraic operation. That means you know that there are four fundamental operations. One is addition, subtraction, multiplication and division. That means when we combine an algebraic expression with a symbol, that is we can say the operation, plus and 3 is the constant. When we combine it become a algebraic expression. This is not equation. Remember, this is not equation. This is the expression. When talking about equation, you see I have written 2x plus 3. You see 2x plus 3 is an example of an algebraic expression. When we write equal to suppose 7, or we can write 2x plus 3 equal to suppose x plus 5. You just see the two things. One is 2x plus 3 equal to 7, another is 2x plus 3 equal to x plus 5. What we observe and how it is different from this one? You see यहाँ पर हम लोग ओनली लिखे थे 2x plus 3, लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2x plus 3 equal to 7. That means when talking about equal symbol, मतलब दोनों का बीच में एक इक्वल सिंबल है. और वी कैन से जहां पर दो एक्सप्रेशन का बीच में अगर हम इक्वालिटी कर रहे हैं, then it become an equation. That means when we separate the two expression through the equal symbol, then it become an equation. That means this is an example of equation, this is an example of equation, because यहाँ पे x plus 5 is an expression, 2x plus 3 also an expression, लेकिन दोनों का बीच में equal symbol. I am repeating equal symbol. Equal symbol मतलब है दोनों expression को separate कर रहा है और दोनों expression को equal symbol माध्यम से ये separate कर रहे हैं, then it become an equation. Now question is, this is called right hand side, we shortly written
RHS वी रिटर्न, दिस इज द लेफ्ट साइड में है LHS, मतलब इक्वल सिंबल का लेफ्ट में है जो एक्सप्रेशन रहता है उनको बोलते हम लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज कॉल्ड द RHS, right hand side of the equation. Okay, when talking about the equation, we shortly conclude that when two expressions are separate through a symbol equal, then it become an equation. This is not a linear equation, that is only equation. When talking about the linear, linear का मतलब क्या है? linear का यही मतलब है कि कोई एक पोलिनोमियल, उनका जो डिग्री और वी कैन से अननोन क्वांटिटी जो है उनका अगर डिग्री और पावर अगर 1 है, देन इट बिकम लीनियर इक्वेशन. हाउ इट इज? फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे एक एग्जांपल दिए थे 2x + 3, ये एक एक्सप्रेशन है, उनका डिग्री कौन है? डिग्री आप देख सकते हो जो अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी यहाँ पे x इज द अननोन क्वांटिटी. अननोन क्वांटिटी का पावर हम पढ़ चुके हैं कि पावर हो कि इंडेक्स हो कि डिग्री है, कुछ नहीं, मतलब ये 1 है, देन इट बिकम ए लीनियर. लीनियर का मतलब है कोई एक एक्सप्रेशन का जो अननोन क्वांटिटी है, अगर उनका पावर, डिग्री, इंडेक्स व्हाट एवर इट मे बी, अगर 1 है, देन इट बिकम द लीनियर. लीनियर का मतलब है पावर ओनली 1 है, 2 है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 है तो क्यूबिक बोलते हैं. ऐसे आगे आगे हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज जो हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे वो है लीनियर इक्वेशन. दैट मीन्स अगर मैं बात करूं, लीनियर इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, वन इज लीनियर, अनदर इज इक्वेशन. दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन है, उनका अगर डिग्री 1 है, डिग्री अगर 1 है, then we can say this is the linear equation. This is the very important things and we must have to understand. The linear equation का वो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज कॉल्ड द टर्मिनोलॉजी कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, मतलब हम कैसे पता चलेगा ये लीनियर इक्वेशन है, इमीडिएटली हमको कैसे पता चलेगा? देयर इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म. वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक मैथमेटिकल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट इज व्हेन टॉकिंग अबाउट ए इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax + b = c. You see, when we write an equation in a standard form, ax + b = c, आप पहले पता है इक्वल सिंबल रहना बहुत जरूरी है. अगर इक्वलिटी नहीं है वो इक्वेशन नहीं होगा, इट बिकम ए एक्सप्रेशन. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, क्योंकि बहुत टाइम पे ये कंफ्यूज होता है एक्सप्रेशन क्या है एंड इक्वेशन क्या है. इक्वेशन पे इक्वल सिंबल रहता है, एक्सप्रेशन पे नहीं रहता है. मतलब अगर ax + b ओनली मैं लिखूंगा, इट बिकम एक्सप्रेशन. इक्वल सिंबल के बाद और कुछ लिखूंगा, और कुछ मतलब हो सकता है कि और एक एक्सप्रेशन लिखूंगा और एक कांस्टेंट क्वांटिटी लिखूंगा, देन इट बिकम ए इक्वेशन. दैट मीन्स व्हेन टॉकिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म है व्हेन ax + b = c. कंडीशन क्या है? a ≠ = 0. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है. अगर a 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? 0 अगर हो जाएगा, a 0 हो जाएगा, x बिकम, क्योंकि आपको पता है 0 के साथ x अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 बन जाएगा, मतलब इनका मीनिंग नहीं रहेगा. सो b = c व्हिच इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन. सो लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = c where a ≠ = 0. दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन. और क्या है? सेकंड कंडीशन इज a b c एलिमेंट ऑफ r. एलिमेंट ऑफ r मतलब ये तीनों रियल नंबर है, क्योंकि हम जो जितने बात कर रहे हैं कि रियल नंबर बारे में ही बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर हायर लेवल पे उसको बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे. सो
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ को हम समझ नहीं पाए तो लीनियर इक्वेशन को बिल्कुल हम समझ नहीं पाएंगे। सो व्हेन टॉकिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन मीन्स इक्वेशन having the standard form ax plus b equal to c, where a not equal to 0, this is the first condition. Second condition, a b c element of r मतलब real number है, then it become a linear equation. ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर एग्जाम्पल में बताऊं, आप वेरी सिंपल है, 3x plus 5 इक्वल टू 7, ये एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि इसी फॉर्म पे है, आप देख सकते हैं इसी फॉर्म पे है। x मतलब 3, यहाँ पे a इक्वल टू 3, x रह गया, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 7, तो इसी फॉर्म पे है। दैट्स वाई इट बिकम ए लीनियर इक्वेशन। अगर मैं सिंपली बताऊं 7x इक्वल टू सपोज 49, इट इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन, क्योंकि a 0 नहीं है, b 0 हो सकता है। यहाँ पे जो हम कंडीशन लिखा था कि a 0 नहीं होना चाहिए, b हो सकता है, b के साथ कोई रिलेशन नहीं है, b के हो कि c हो, उनको साथ कोई रिलेशन है नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस वी कैन से 7x इक्वल टू 49, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर मैं बात करूं 7x minus 7 equal to 9, it is also a linear equation, because it is in the form of x plus b equal to c, it is c form पे है, so we can say this is also a linear equation. So we must have to understand what is the linear equation, to which type of equation we call it the linear equation. सारे equation linear नहीं है, क्योंकि और एक मैं अगर बात करूं कि जैसे मैं ये कंडीशन दिए थे कि आपको ax b फॉर्म पे रहना चाहिए। सपोज एक इक्वेशन में दे रहा हूं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू सपोज 7। आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं पहले बता दिए थे कि जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जो है, जो x का पावर 1 होना चाहिए, 1 है, देन वी कैन से लीनियर इक्वेशन। इट इज अ इक्वेशन बट इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जिसका पावर 2 आ जाता है, इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज which type of equation is called linear equation, we must have to understand this, where and which condition it is called the linear equation. This is called the standard form of the linear equation. Right now we will be discuss about the formation. किस किस सिचुएशन पे, कौन सा सिचुएशन पे linear equation फॉर्म होता है, that is called the formation. This is called the formation of लीनियर इक्वेशन। किसी कंडीशन में, किस सिचुएशन पे फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन? अगर मैं बात करूं कि 5 साल पहले, 5 ईयर बिफोर माई एज वाज सपोज 35, आई एम जस्ट डिस्कसिंग, 5 साल पहले मेरा एज 35 था, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि 5 साल के बाद मेरा एज कितना होगा। आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन क्या है। क्वेश्चन इज 5 साल पहले मेरा एज 35 था, 5 साल पहले, मैं इसी सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन फॉर्म पे कैसे लाऊंगा? ये है, मैं ऐसे सोचूंगा कि 5 साल पहले मेरे तो 35 था, मैं अभी क्या होगा? सपोज मैं अभी है, सपोज मैं एक्स ले लिया, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ माई सेल्फ इज एक्स, जिसको निकालना है उनको हम एक्स ले जाते हैं। ओके, सपोज प्रेजेंट एज इज एक्स। ओके, 5 साल पहले एक्स माइनस 5, क्योंकि पहले का बात जो है ये माइनस होता है,
आगे के बाद पॉजिटिव होता है, ये सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि ये बन जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 35। आप देख सकते हैं कि x माइनस 5 इक्वल टू 35 एक सिचुएशन, एक कॉन्टेक्स्ट को हम एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म पे ले के मतलब एक सिचुएशन, एक कॉन्टेक्स्ट जो क्रिएट होता है हमारा डे टू डे लाइफ में, हम उनको लीनियर इक्वेशन फॉर्म पे ले आए, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बात है एक फॉर्म हो गया, कैसे सॉल्व करना है हम बात करेंगे। अगर सॉल्व कैसे करना है तो मैं सेकेंड फेज में हम डिस्कशन करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशन, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू सॉल्व ए लीनियर इक्वेशन, हम बाद में बात करते हैं। लेकिन हम फॉर्मेशन करें, सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं कि कौन सा सिचुएशन पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म होता है। ट्वाइस ए नंबर, आई एम रिपीटिंग, ट्वाइस ए नंबर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 7 is suppose 15. Again I am repeating, twice a number subtract from suppose 7, that means 7 से एक नंबर twice a number हम ले लिए, let the number is x। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं उनको अननोन क्वांटिटी बोलते हैं, दैट इज द वेरिएबल, क्योंकि हमको पता नहीं, उनका वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो अननोन क्वांटिटी इज हियर x, ट्वाइस ए नंबर मतलब 2 गुना 2x हो जाएगा। कहाँ से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं? 7 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स 7 माइनस 2x इक्वल टू क्यों दिया कि इज हम एक वर्ड यूज किए, इज मीन्स इक्वल सिंबल आ जाएगा, दैट मीन्स 7 माइनस 2x इक्वल टू 15। ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुआ कि नहीं है? हुआ, क्योंकि ये एक्स बी फॉर्म पे है, जस्ट अरेंज कर लेंगे तो एक्स प्लस बी फॉर्म पे आ जाएगा। ओके, समटाइम्स सपोज मैं बताऊं, मेरा एंड तुम्हारा एज मिला कि 45 है। ओके, सपोज माई एज एक्स ले जाऊंगा, आपका एज वाई ले जाऊंगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 45 हो गया। दैट इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल है। समटाइम्स वी कॉल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जहां पर 2 वेरिएबल क्रिएट होगा वी कॉल एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां पर 1 वेरिएबल क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द context where we create a linear equation. Okay, now we have to discuss about how to solve the linear equation. linear equation को सॉल्व करने का तरीका क्या है, किसी ढंग में, किसी तरीका से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्विंग ऑफ। मैं बताता हूं कि सॉल्व कैसे करना है, हमको तो पता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्व करना है, सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन को किसी ढंग, किसी तरीका से हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या है, तो हमको पता चल गया कि ये इक्वेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू सी, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। जहाँ पर बात है सॉल्व का मतलब क्या है, सॉल्व मैं ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम का सॉल्व क्या है, मतलब क्या है? ये मतलब होता है सॉल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम तो हमारा सोशल प्रॉब्लम है, हम बताते हैं कि एक न्याय दे कि सॉल्यूशन निकालना है, दिस इज द सोशल कॉन्टेक्स्ट। अगर मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट बताऊं, एक अननोन क्वांटिटी, सॉल्व का मतलब होता है, सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब जो वैल्यू हम निकालने के लिए जा रहे हैं, अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है। जैसे एक्स एंड वाई, जेड, पी, क्यू, आर, ए, बी, जो भी है अननोन क्वांटिटी है, उनका वैल्यू निकालना है। दैट इज कॉल्ड द सॉल्विंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, लीनियर इक्वेशन का आपको पता है डिग्री 1 होता है। डिग्री किसका डिग्री है? अननोन क्वांटिटी का डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 1 आएगा, 2 कभी भी नहीं आएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्व करने के लिए हम जा रहे, देयर आर ओनली 1 एंड ओनली 1, आई एम रिपीटिंग, 1 एंड ओनली 1, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, 2 सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड द सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। जहां पर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वहां पे सॉल्यूशन एक मिलेगा।
आगे सिचुएशन हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन पे 2 सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि उनका पावर 2 है। क्यूबिक इक्वेशन पे 3 सॉल्यूशन मिलेगा, और क्योंकि उनका पावर 3 है तो वेरी सिंपल है, जिसका पावर जितना है उतना सॉल्यूशन मिलेगा। सो बात इतने तक रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ओनली 1 मिलेगा। राइट नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप, किसी स्टेप से हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे नज़र पे तो देयर आर 3 स्टेप्स, तीनों स्टेप से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। व्हाट आर द 3 स्टेप्स, लेट्स वी हैव टू डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिया, सपोज 2x प्लस 3, आई एम रिपीटिंग 2x प्लस 3 इक्वल टू सपोज 9। ओके, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, एम आई राइट? दिस इज द लीनियर इक्वेशन। क्योंकि लीनियर की मैं जबरदस्ती बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म पे है, इसलिए हम लीनियर इक्वेशन बता रहे हैं। सो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 is a standard form of a linear equation. Now question is how to solve the linear equation. There is the step 1. अगर S1 बात करूं, स्टेप 1 क्या है, देन में हम सॉल्व करेंगे इस साइड में। आप देख सकते हैं स्टेप 1 पे एक है, क्या कंडीशन है? अगर हम ये बात कर सकते हैं, अगर 9 जगह पे मैं लिखूं सपोज इक्वल टू सपोज लिखा मैं x प्लस 9 सपोज, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है ये भी एक्सप्रेशन है, देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन स्टेप 1 यही है कि लीनियर इक्वेशन का स्टेप 1 है कि हम वन साइड में वेरिएबल को रखेंगे, वन साइड में कांस्टेंट को रखेंगे। आप रिपीट कर रहे हूँ, देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल है। यहाँ पे मतलब क्या, ये LHS, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। मैं पहले बताया था इक्वल का लेफ्ट पे रहता है जो, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द RHS, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये शॉर्टली हम लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन इज स्टेप 1 क्या है, मैं लिख देता हूँ, टुगेदर of variable and constant to different side। उसका मतलब है कि हम वन साइड में वेरिएबल को रखेंगे, दूसरा साइड में कांस्टेंट को रखेंगे। वेरिएबल कौन है? वेरिएबल यहाँ पे है, आपको पता है 2x प्लस 3 में वेरिएबल कौन सा है? 2x इज द वेरिएबल, 2x इज द वेरिएबल। x प्लस 9 पे x इज द वेरिएबल। स्टेप 1 क्या बोल रहा है? स्टेप 1 ये बोल रहा है कि हम वेरिएबल को वन साइड पे रखेंगे, कांस्टेंट को अनदर साइड में रखेंगे। तो ये मतलब है 2x एंड x को हम एक जगह पे रखेंगे, लेकिन रखने के लिए भी एक नियम है, एक जिसको रूल बोलते हैं, रूल ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर हम वेरिएबल को लेफ्ट से सेकंड स्टेप है, यहाँ पे स्टेप 2 बन जाएगा। अगर चेंज कर रहे मतलब राइट को लेफ्ट ले रहे हूँ, लेफ्ट को राइट ले रहे हूँ, तो यहाँ पे सिंबल चेंज होगा। कैसे सिंबल चेंज होगा? अगर पॉजिटिव है इट बिकम नेगेटिव, अगर नेगेटिव है इट बिकम पॉजिटिव, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम साइड को चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा, ये रूल है। एंड मल्टीप्लिकेशन जो है ये डिवीजन हो जाएगा, अगर डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मीन्स प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, मल्टीप्लिकेशन बिकम डिवीजन, डिवीजन बिकम मल्टीप्लिकेशन, अगर हम साइड को चेंज कर रहे तो ये चीज को भी सेकंड स्टेप में फॉलो करना है। तो फॉलो कैसे किया? 2x यहाँ पे x था, x को हम चाहते हैं इस साइड को लाना है, हम चाहते हैं इस साइड को लाना है। वी जस्ट वांट टू चेंज द वेरिएबल फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। सो इन दिस कंटेक्स्ट व्हाट विल बी डू? विल बी डू 2x यहाँ पे प्लस x था, सो इट बिकम माइनस x होगा, क्योंकि ये सेकेंड स्टेप कर रहे हैं, प्लस में नेगेटिव होगा। सो 2x माइनस x
इक्वल टू, अगर मैं बात करूं इक्वल टू, ये 9 तो था, जो चेंज नहीं कर रहे उनका सिंबल चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, 3 राइट हैंड साइड को लाना है, सो 9 माइनस 3 हो जाएगा। ये +3 था, राइट हैंड साइड को -3 हो जाएगा। ओके, सो नाउ 2x माइनस एक्स इक्वल टू 9 माइनस 3। नाउ 2x से x जाएगा, क्या होगा वैल्यू? x होगा। सो x इक्वल टू 9 माइनस 3 जो है 6 हो जाएगा। दैट इज द x का वैल्यू हमको मिल गया। दैट मीन्स x इक्वल टू 6। दिस इज द सॉल्विंग, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन को। दिस इज द वे टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। और एक एग्जाम्पल में ले जाता हूँ जिसमें और आसान हो जाएगा, हमको समझने में बहुत इजी बन जाएगा। लेट्स सी। डियर स्टूडेंट, यू सी, सपोज मैं लिया कि 2x बाई 5 इक्वल टू सपोज मैं लिया 6। कैसे उनको सॉल्व करेंगे आप बताइए? ये स्टेप 1 पे हमको क्या करना है? स्टेप 1 है टुगेदर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टू डिफरेंट साइड, मतलब एक साइड में वेरिएबल, एक साइड में कांस्टेंट लेना है। लेकिन यहाँ पे बात है, ये ऑलरेडी देयर, हमको स्टेप 1 करना कोई जरूर नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल एक साइड में, कांस्टेंट एक साइड में ऑलरेडी है। लेकिन सेकेंड स्टेप को लिखना है। सेकेंड स्टेप में क्या है? सेकेंड स्टेप यही है कि 2x जो है, यहाँ पे देखिए आप, ये डिवीजन फॉर्म पे है, 2x बाई 5, बाई मतलब ये डिवीजन फॉर्म पे है, तो इस साइड को आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2x इक्वल टू 6 माइनस 5 होगा। ये रूल है, क्योंकि मैं रूल लिखा था कि डिवीजन बिकम मल्टीप्लिकेशन। सो 2x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई विथ 5, वैल्यू क्या होगा? दैट इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 30। 2x इक्वल टू 30 बन गया, तो x का वैल्यू क्या होगा? ये क्या, कौन सा फॉर्म पे है? ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म पे है, 2x, तो राइट हैंड साइड पे आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 30/2, 30/2 ये हो जाएगा। स्टेप 3 जो है वो वी अंडरस्टूड, बट वी हैव मस्ट हैव टू फॉलो। ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म समटाइम्स वी कॉल एज द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म क्या है? 30/2 लिख के छोड़ देना जरूर नहीं है, क्योंकि 30/2 डिवाइडेड हो चुका है, तो 30/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? वैल्यू होगा 15, क्योंकि 30 से 2 अगर डिवाइड करेंगे वैल्यू 15 आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द लोएस्ट फॉर्म, ओके, और वी कैन से सिंपलेस्ट फॉर्म पे। सो दैट इज कॉल्ड x का जो वैल्यू है यह आ गया 15। दिस इज द सॉल्विंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन। किसी तरीका से, किसी ढंग में लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द, हम लोग पढ़े कि लीनियर इक्वेशन क्या है, किस फॉर्मेट में होता है, मतलब दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव आल्सो डिस्कस द हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। लेकिन ऐसे कहाँ पे नहीं मिलेगा कि आपको इक्वेशन दिया है आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सिचुएशन से ही क्रिएट होता है लीनियर इक्वेशन। जिसमें एक मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल जिसपे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। डियर फ्रेंड, जैसे है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 36, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन क्या दिया? दैट इज एग्जाम्पल 1, दिस इज कॉल्ड द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड से हम क्रिएट करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्रिएट करेंगे। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, आपको पता है इवन इंटीजर का मतलब है कि इवन इंटीजर का मतलब है इंटीजर व्हिच आर डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड द इवन इंटीजर। 3 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब पास पास। जैसे मैं बताऊं, x इज द, सपोज x इज द 1 इंटीजर, कंसेक्यूटिव नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा x प्लस 2 होगा, प्लस x प्लस 4 होगा, क्योंकि इवन जो इंटीजर है आपको पता है 4 इज द 4 6, 4 जो है
4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है। दिस इज कॉल्ड इवन इंटीजर्स। सो दोनों का बीच में गैप कितना है? 2 है। अगर मैं बात करूं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 36, मतलब ये बनेगा x प्लस 2 x प्लस 4 इक्वल टू 36। ओके, दिस इज द जो हम चाहते हैं, जो जिस फॉर्म पे लीनियर इक्वेशन को लाना है इसी फॉर्म पे आ गया, दैट इज x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 36। नाउ वैल्यू क्या होगा? x 3 बार है तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2 प्लस 4 6 हो जाएगा इक्वल टू 36। नाउ 3x इक्वल टू 36 माइनस 6 इक्वल टू 30। क्यों माइनस हुआ? कि प्लस 6 था, ये माइनस 6 हो जाएगा। सो नाउ 3x का जो वैल्यू आ जाएगा 30/3 होगा। 30/3 का वैल्यू क्या हो गया? दैट इज 10 आ गया। दैट मीन्स 3x अगर 30 है, x का वैल्यू आ जाएगा 10 आ गया। तो ये मतलब है जो पहला इंटीजर जो है दैट इज x का वैल्यू अगर 10 है, हम क्या लिए थे? तीनों इंटीजर है। पहले अगर 10 है 10x प्लस 2 क्या हो जाएगा? दैट इज 10 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 10 प्लस 4 हो जाएगा। दैट मीन्स सेकेंड जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज 12, थर्ड जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज आ जाएगा 14। ओके, दैट मीन्स व्हाट आर द इंटीजर? कौन सा इंटीजर है? 10, 12, 14 ऐसे 3 इवन इंटीजर जिसको हम ऐड करने के बाद 36 मिल जाता है। आप और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब हमारा आंसर सही है कि गलत है हम खुद क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, सेल्फ वेरीफाई कर सकते हो। लीनियर इक्वेशन का सबसे बड़ा एक ब्यूटी पार्ट है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट टू सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इज वी कैन क्रॉस चेक आवर सॉल्यूशन, वी कैन वेरीफाई आवर सॉल्यूशन। दैट मीन्स मेरा सॉल्यूशन सही है कि गलत है हम खुद वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप खुद देख सकते हैं 36 है ना, तो ये 4 2 6 है, 1 1 1, मतलब ये है, तीनों अगर मिला देंगे ये भी 36 हो जाएगा। डियर लर्नर्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन एंड हमारा डे टू डे लाइफ में कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसको बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। राइट नाउ वी विल बी टेक ए शॉर्ट ब्रेक, देन आफ्टर वी विल बी डिस्कस मोर अबाउट द लीनियर इक्वेशन। प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, Dear learners, we are discussing about the linear equations and how to solve the linear equation. And as a totality we have discussed what is the exactly the standard form of a linear equation, what are the different steps to solve the linear equation, and very important thing is जैसे हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेरेटिक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करना है थ्रू लीनियर इक्वेशन माध्यम पे, उसके बारे पे हम भी चर्चा कर रहे हैं. डियर लर्नर्स, दैट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड द वार्ड प्रॉब्लम. जैसे मैं एक पहले एग्जाम्पल लिए थे, अभी सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड द एग्जाम्पल टू. That is, the length of a rectangle is 3 centimeter more than its breadth. Length of a rectangle is 3 centimeter more than its breadth. If its perimeter is 34 centimeter, find its length and the breadth. ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसी टाइप का जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे थ्रू द लीनियर इक्वेशन. Again I am repeating the question. The length of a rectangle is 3 centimeter मोर देन द ब्रेथ. आपको पता है एक रेक्टेंगल जो है ऑपोजिट साइड बराबर होता है. जैसे सपोज ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, सपोज लेंथ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. ये क्वेश्चन है. अगर हम ब्रेथ आपको पता है ये ब्रेथ होता है, ये लेंथ होता है. अगर हम ब्रेथ को x लेना है और कोई उपाय नहीं है हमारे पास, क्योंकि जिसको पूछ रहा है निकालना है उसको x ले जाना है, ये तरीका होता है. सपोज हम ब्रेथ को x ले लिया, लेंथ बिकम क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि एज पर द क्वेश्चन लेंथ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ. दैट मीन्स अगर ब्रेथ x है, लेंथ हो जाएगा x प्लस 3. क्वेश्चन इज पेरीमीटर जो है, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर 34 सेंटीमीटर है. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, 2 टाइम्स L प्लस B इक्वल टू 34 एज पर द फॉर्मूला, एज पर द क्वेश्चन. सो नाउ अगर मैं बात करूं 2 टाइम्स L क्या दिया है, दैट इज L इज गिवन x प्लस 3, ब्रेथ इज गिवन x व्हिच इज इक्वल टू 34. नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूं x प्लस 3 प्लस x, दैट मीन्स x प्लस 3 प्लस x जो है ये वैल्यू हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 34. ओके, नाउ 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा 34/2, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, राइट हैंड साइड में डिवीजन हो जाएगा. दैट वैल्यू इक्वल टू 17. ओके, नाउ 2x प्लस 3 इक्वल टू 17. 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 17 है ये प्लस 3 है,
राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन इज जस्ट वहाँ पे यहाँ पे जस्ट वी हैव टू करेक्ट दिस वन बिकॉज 2 times 2x plus 3 इट्स वैल्यू इक्वल टू 4x, क्योंकि 2 times of 2x इक्वल टू 4x, 2 multiply 3 equal to 6 which equal to suppose which equal to 34. Okay, now question is 4x equal to क्या बन जाएगा 34 minus 6, that implies 4x equal to 34 minus 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा 28, 28 होगा 28, एंड x का वैल्यू क्या होगा 28 by 4, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, राइट हैंड साइड में डिवीजन हो जाएगा, दैट वैल्यू इक्वल टू 7. दैट मीन्स x का वैल्यू 7 आ गया. x का मतलब क्या है, ब्रेथ आ गया 7 एज पर द क्वेश्चन, एज पर द सोल्यूशन. एंड लेंथ क्या बन जाएगा, लेंथ का वैल्यू जो है x plus 3, दैट मीन्स ये जो 7 है दैट इज ब्रेथ, और लेंथ क्या होगा, लेंथ का वैल्यू है, लेंथ इज इक्वल टू x plus 3, दैट इज x plus 3. x plus 3 मीन्स दैट मीन्स 7 plus 3 इक्वल टू 10. 10 क्या है 10 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर. दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द जो क्वेश्चन था, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगा, तो ये हो गया, लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हो गया 7 सेंटीमीटर. और एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं. दिस इज द वे टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, दैट इज एग्जांपल 3. ये और एक दूसरा तरीका से हम उनको सॉल्व करेंगे, दैट इज दिस प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड द वर्ड प्रॉब्लम्स, क्योंकि वर्ड मतलब ये है कि वर्ड से ही हम डिराइव करते हैं, सिचुएशन से ही लीनियर इक्वेशन को डिराइव करते हैं, देन उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, देन उनका जो प्रॉब्लम का वैल्यू हम निकाल के सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं. एंड दैट इज द वे टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन. जैसे है सम ऑफ 2 इंटीजर इज 85. क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 85. इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 7, फाइंड द नंबर. अगेन आई एम रिपीटिंग, दोनों इंटीजर को अगर मिला देंगे 85 होगा. क्वेश्चन ये पूछ रहा है अगर एक नंबर दूसरा नंबर को साथ एक्सीड कर रहा है, मतलब ज़्यादा है, फाइंड द 2 नंबर्स. दोनों नंबर का कौन कौन सा नंबर है. ये बहुत सिंपल है कि सपोज लेट वन नंबर इज x. पहला नंबर हम x ले लिए, दूसरा नंबर क्या होगा, इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 7, मतलब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, द सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x plus 7 हो जाएगा, क्योंकि पहला नंबर से दूसरा नंबर 7 एक्सीड कर रहा है, बढ़ रहा है, ज़्यादा है. सो ये बन जाएगा x plus 7. सो एज पर द क्वेश्चन ये दोनों को मिला देंगे तो 85 होगा. दैट मीन्स x plus 7 which is equal to 85. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. एंड अगर हम नाउ सॉल्व करेंगे, x plus x क्या है 2x है, यहाँ पे प्लस 7 था, राइट हैंड साइड को क्या होगा आपको पता है, प्लस 7 लेफ्ट में है, राइट में नेगेटिव हो जाता है, तो ये बन जाएगा 85 minus 7. दैट मीन्स 2x इक्वल टू 85 minus 7 का वैल्यू है 78. ओके, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 72 by 2. बाई 2 क्यों हुआ आपको पता है, ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ आएगा तो डिवीजन हो जाता है. 72 by 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 इज 6, ओके, एंड 18 दैट इज 39. अगर x का वैल्यू 39 है, मतलब पहला नंबर जो है, अगर मैं बात करूं यहाँ लिखूं x का वैल्यू अगर 39 है, सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर बनेगा 39 plus 7, क्योंकि x plus 7. दैट मीन्स 39 plus 7 which equal to 9 7 16 6 1 that is 46.
That means one number is 39, another number is 46. ओके अगर मैं जैसे बात किए थे, हम खुद अपने को क्रॉस चेक कर सकते हूँ, वेरीफाई कर सकते हूँ। अगर दोनों को मिला देंगे, जैसे 39 अगर 46 को हम ऐड कर लेंगे, जो 85 था, दोनों नंबर को मिला देंगे तो 85 होगा, वो भी हम सेल्फ वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम जितने भी अभी तक बात किए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अभी हम और एक बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कैसे है? जैसे मैं बात करूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, आप एक इक्वेशन को देख सकते हैं। हम जितने अभी तक बात कर रहे थे सारे था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ओनली x था। यहाँ पे दो वेरिएबल आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, x इज द वन वेरिएबल, y is the another variable. This type of equation is called linear equation. अगर मैं शॉर्टली लिखूं linear equation in two variables. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको सॉल्व करने का जो तरीका है समथिंग डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? उनका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज ax प्लस by इक्वल टू c। अगेन आई एम रिपीटिंग, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज x प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म वहाँ था, लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है। कंडीशन ए बी दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो वन वेरिएबल पे ओनली ए जीरो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी एंड a b not equal to 0, then it become we can say linear equation in two variable। उनको सॉल्व करने का तरीका अलग है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो x y, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अनदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। x का वैल्यू y का ऊपर डिपेंडेंट है, y का वैल्यू x का ऊपर डिपेंडेंट है। सो उनको जो सॉल्व करने का तरीका है समथिंग डिफरेंट। वो कैसे डिफरेंट है उसको बारे में हम चर्चा करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हमें लीनियर इक्वेशन को बारे में चर्चा की है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अनदर कॉन्सेप्ट इज इन्वॉल्व दैट इज कॉल्ड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब है पेयर, दो, पेयर का मतलब दो है, आपको पता है। जैसे हम बोलते हैं एक 100 पेयर, मतलब 200 मिलेंगे तो एक पेयर होता है। ओके, जैसे हम बात करूं सपोज 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 5x प्लस 7y इक्वल टू 9। आप देख सकते हैं ये दो इक्वेशन है एंड दो इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आपको याद दे देता हूं क्योंकि x एंड y यहाँ पे है, x एंड y यहाँ पे भी है। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिंगल नहीं है, उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि एक पेयर है, पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन है एंड किसी ढंग में ये दो वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई इन्वॉल्व है। सो दिस इज कॉल्ड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एंड हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। वहाँ का सॉल्व करने का उनको सॉल्व करने का 3 मेथड्स है। वन इज ग्राफिकल मेथड, अनदर इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड वन इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड। तीनों डिफरेंट टेक्निक्स है टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं, उनका सिनोनिम है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। ओके, so this is called, first method is called the graphical method, second method is called the substitution method, third method is called the elimination method। ध्यान रखिए कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। जैसे मैं बात किए ग्राफिकल मेथड है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो कि एलिमिनेशन मेथड हो, मेथड अलग है लेकिन सॉल्यूशन जो मिलेगा हमको सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन, एक ही मतलब ग्राफिकल मेथड पे जो सॉल्यूशन मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सेम सॉल्यूशन मिलेगा, एलिमिनेशन मेथड में भी
सेम सोल्यूशन मिलेगा। दैट मीन्स टेक्निक्स आर डिफरेंट बट द ऑब्जेक्टिव्स इज वन। कोई भी मेथड हम सॉल्व कर सकते हो लेकिन हमको सोल्यूशन सेम सोल्यूशन मिलेगा। लेट वी कम टू वन ऑफ हाउ टू सॉल्व थ्रू बाय ग्राफ। अब तो ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कैसे ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है। एक्स प्लस, देख यहाँ पे हम दो जो इक्वेशन लिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x minus y equal to 2. This is called the equation number 1. This is called the equation number 2. And you see this is the linear equation in two variable and this is called a pair of linear equation. क्यों पेयर बोल रहे हैं कि दो इक्वेशन है इसलिए हम पेयर बोल रहे। उनका जो सॉल्यूशन आएगा, आप ध्यान रखिए, उनका जो सॉल्यूशन आएगा x आएगा y आएगा इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर। जैसे हमको पता है एक्स वाई ऐसे आएगा, एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर मतलब एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू एक ऑर्डर पेयर फॉर्म पे आएगा। हम उनको ग्राफ फॉर्म पे हम सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं, अगर हम ये ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर एक्स का जगह पे मैं 1 लूँ, वाई का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर एक्स का वैल्यू 3 लूँ, वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 1 3 ग्राफ पेपर पे आप खुद कर सकते हैं, 1 3 कहाँ रहेगा, 1 3 ये रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट में 1 स्टेप जाएंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट में 3 स्टेप ऊपर जाएंगे। ये तो ग्राफ मेथड में कैसे सॉल्व करना है, आपको अगर ज़्यादा देखना है तो आप किताब भी फॉलो कर सकते हैं। अगर 1 3 इज द 1 पॉइंट, अनदर पॉइंट इज कमिंग 3 1। अगर ये एक लाइन ज्वाइन कर गया, दैट मीन्स दिस इज द लाइन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन को आएंगे तो एक्स वाई, अगर एक्स का वैल्यू 4 लूँ, वाई का वैल्यू 6 होगा। अगर एक्स का वैल्यू 0 ले जाऊँ, वाई का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। अगर उनको मैं ग्राफ में प्लॉट करना चाहते हूँ, ये बन जाएगा, दैट इज द ग्रीन लाइन इज द लाइन ऑफ द सेकेंड इक्वेशन, रेड लाइन इज द लाइन ऑन द फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन ये दोनों एक जगह में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब दोनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, आप देख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। जो पॉइंट में ग्राफ पेपर पे जो पॉइंट में क्रॉस इंटरसेक्ट कर रहे, दैट कोऑर्डिनेट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। दैट इज दो आप देख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है 2 and 2, दैट मीन्स x का वैल्यू 2 होगा, y का वैल्यू 2 होगा। नाउ सेम इक्वेशन हम, मतलब ये है कि इक्वेशन को हम ग्राफ माध्यम से सॉल्व करने के बाद ये आ गया कि वैल्यू x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 भी है। सेम इक्वेशन को मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम कैसे सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे मतलब एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, दूसरा इक्वेशन पे पुट करना है। जैसे मैं बात करूं, ये दोनों हमारा था इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर मैं x का वैल्यू लूँ, x का वैल्यू क्या होगा, 4 माइनस वाई होगा। एम आई राइट? इक्वेशन 1 को सॉल्व किए, x का वैल्यू 4 माइनस वाई हुआ। ये वैल्यू जो है, ये सपोज इक्वेशन 3 कर दिए, थर्ड इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में डालते हैं, डाल के देखते हैं क्या हो रहा है। अगर ये वैल्यू होगा 2, x का वैल्यू क्या आ गया, 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई इक्वल टू 2। ये होगा कि नहीं होगा? वेरी सिंपल है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 था, 2 रखा है, x का वैल्यू जो निकाला ये इक्वेशन पे मैं डाला, दैट मीन्स 4 माइनस वाई माइनस ऑफ वाई इक्वल टू 2। नाउ ये इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, ये वैल्यू क्या होगा, 8 माइनस 2y माइनस ऑफ y इक्वल टू 2 होगा। ये सर नो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 8 माइनस 2y माइनस y, ये बन जाएगा 3y इक्वल टू 2। ओके, ये क्या होगा, आपको वेरी सिंपल है, 8 माइनस 3y इक्वल टू 2 है। सो 8
-2, ये +2 था, लेफ्ट को आएगा तो माइनस होगा, ये -3y था, राइट होगा तो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स 3y इक्वल टू क्या होगा, आप यहाँ पे मैं अगर देखूँ ये बन जाएगा 3y इक्वल टू 8 - 2 6 है, 3y 8 से 2 अगर माइनस करूँगा ये वैल्यू आ जाएगा 6, देन y का वैल्यू क्या होगा 6/3 विच इक्वल टू 2। ओके, मतलब y का वैल्यू हम निकाल दिए 2 मिला है। y का वैल्यू 2 जो मिला है, कोई भी इक्वेशन पे डालूं, x का वैल्यू देखना है, सपोज 1 इक्वेशन पे डालूं, 1 पे था x प्लस y का वैल्यू क्या था, ये मैं पुट कर रहा हूँ। सब्सटीट्यूशन मेथड मतलब है एक जगह को सॉल्व करके, एक वेरिएबल को सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है, दूसरा इक्वेशन में डालना है, दैट इज कॉल्ड द सब्सटीट्यूशन मेथड। दैट मीन्स ये इक्वेशन पे अगर डाल रही हूँ, x था तो x लिखा, x का वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हो, y का वैल्यू 2 मिला है तो y का जगह पे 2 लिखा है मैं, x प्लस 2 इक्वल टू 4 था तो x का वैल्यू क्या आएगा 4 - 2, ये भी 2 आया। ये मतलब x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है। दैट मीन्स वेरी सिंपल है, सब्सटीट्यूशन मेथड पे भी x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू 2 आया। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, हम तीनों मेथड बारे में चर्चा कर रहे हूँ, इक्वेशन रिमेन सेम, x का वैल्यू ग्राफ में भी 2 है, y का वैल्यू 2 है, सब्सटीट्यूशन मेथड में x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है। राइट नाउ another method which is called the elimination method, that is called the elimination method। इक्वेशन को हम चेंज नहीं कर रहे, इक्वेशन को चेंज नहीं कर रहे, तरीका चेंज कर रहे हैं, तरीका यही है, दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड स्लाइटली डिफरेंट, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेटिंग करेंगे, देन एक को एलिमिनेट करेंगे, बाहर निकाल देंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो मैं ये चाहता हूँ, ये अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूँ, इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँ, इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आएगा, ये आप देख सकते हैं, वैल्यू आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 8 आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन पे 2 मल्टीप्लाई किया, 2x होगा 2y होगा, 4 2 8 बन गया। सेकंड इक्वेशन को मैं चेंज नहीं करूँगा, जैसे था ऐसे रखूँगा, सो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। अगर ये ना हो मैं सॉल्व करूँ मतलब माइनस कर दूँ, फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करूँ, ये माइनस करूँ, 2x कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है 2x से 2x माइनस हो जाएगा, प्लस 2y माइनस ऑफ माइनस वाई, मतलब क्या बन जाएगा, ये 2y था माइनस ऑफ माइनस वाई मतलब प्लस y है, दैट मीन्स 2y प्लस y ये बन गया, विच इज इक्वल टू 3y, 3y इक्वल टू 8 से 6 जाएगा, दैट इज 6 होगा। नाउ y इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 2, ये भी मिल गया, y का वैल्यू जो है 2 बन गया। दैट मीन्स y का वैल्यू 2 मिल गया थ्रू द पुटिंग थ्रू एलिमिनेशन मेथड। अगर y का वैल्यू 2 में इक्वेशन पे 2 डालूंगा, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, और आपको पता है x रखा, y का वैल्यू 2 मिला है, सो x प्लस 2 इक्वल टू 4 है, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। दैट मीन्स x का वैल्यू 2 भी मिला, y का वैल्यू 2 मिला। दैट मीन्स हम तीनों मेथड पे, वेदर इट इज द एलिमिनेशन मेथड, वेदर इट इज द ग्राफिकल मेथड, वेदर इट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीनों मेथड पे एक ही सोल्यूशन आया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। Dear learners, we have discussed basically the linear equation. In the first phase, we have discussed about linear equation in one variable. Second phase, we have discussed in linear equation 2 variable linear equation, that is called the pair of linear equation, and how to solve the linear equation. And in our day-to-day life, we are very much used the application of a linear equation, and we must have to understand how to solve the linear equations. And I hope you have enjoyed
learning with me, and for more information you must have to regularly see our channel number 27, that is Panini, and channel number 28 Sarda, and it is the live program is going from 10:30 to 4:36 hour. You must have to watch our program, and thank you.